Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 5. This is the part A of the video reading of unit number 7, A Flash of Light, page number 84 to 86. Now open your New Oxford Modern English for grade 5, page number 84, A Flash of Light. रोशनी की चमक. It was a cold day and Valentine who will walk briskly down the cobble street. It was getting dark and he was in a neighborhood he was not very familiar with. He was on his way home and was thinking about the warm room and glowing fire that would greet him on his arrival. A carriage pulled by horses rattled past as Valentine reached the corner of the street. To avoid being trampled by the horses, he stepped back onto the pavement. Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. He turned and saw in the shadows of the wide doorway a man standing with his hat in his hand. "Please, sir," said the man, "spare me some money for poor blind beggar." सर्दियों के एक दिन वैलेंटाइन होवे जो है वो जल्दी से जा रहा था, गली से जा रहा था। अंधेरा हो रहा था, बाहर अंधेरा हो रहा था। वो बिल्कुल अपने पड़ोस में ही था, लेकिन वो उस जगह को नहीं जानता था। अपने घर के रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि एक गर्म कमरा और जलती हुई एक आग उसका इस्तकबाल करेगी। जब वो गली के नुक्कड़ में पहुंचा तो एक भग्गी जिसे घोड़े खींचते हैं उसके पास से गुजरी। उसके अगर वो घोड़ों के नीचे ना आ जाए, उसे बचने के लिए वो फुटपाथ के ऊपर एक स्टेप पीछे होकर खड़ा हो गया। जब वैलेंटाइन जो है वो सड़क क्रॉस करने लगा, पार करने लगा, तो उसने एक कपकपाती हुई आवाज़ सुनी अपने पीछे से। जब उसे पीछे मुड़ कर देखा तो रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक हैट थी। उसने आदमी ने कहा, "प्लीज़ सर, मेहरबानी करके सर मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं बहुत ही गरीब अंधा फकीर हूँ." Valentine was a kind, soft-hearted man and had thought a lot about the problems of blind people. He had often wondered how he could be helpful to the blind. On hearing this request, he at once removed one of his gloves and putting his hand into his pocket, pulled from it a coin which he put in the blind beggar's hat. Valentine जो है वो बहुत ही रहमदिल आदमी और आदमी था। वो अक्सर अंधे लोगों के मुश्किलात के बारे में सोचता रहता था, वो इस बात के ख्वाब दिखता था कि कैसे वो अंधे लोगों की मदद कर सके। उसने जब उसकी ये दरख्वास्त सुनी तो उसने अपना एक ग्लव उतारा और अपने पॉकेट में डाल के एक सिक्का निकाल के उसकी टोपे में डाल दिया। The blind beggar mumbled his thanks and Valentine walked away. He was halfway across the road when he heard the beggar call out, "Sir, please, sir, please, just a moment." Valentine turned once again and turned to face the blind man. "Surely, sir," said the beggar, who was an honest man, "you have made a mistake. You have given me a franc instead of a sou." Valentine was astonished. He was not surprised by the man's honesty, but the fact that he could tell so quickly the difference between a franc and a sou. "How did you know that I have given you a franc?" asked Valentine. "Oh," replied the beggar, "it is enough for me to pass my finger over it." This was like a flash of light in Valentine's head. अंधे फकीर ने जो है मुंह में ही उसका शुक्रिया अदा किया और वैलेंटाइन चला गया। जब वो आधी सड़क क्रॉस कर चुका तो पीछे से उसने फकीर ने उसको आवाज़ दी, सर, एक मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए रुकिए। वैलेंटाइन दोबारा घूमा और बूढ़ा अंधे आदमी की तरफ चेहरा करके देखा। "क्यों नहीं सर?" और बैगर ने उसे कहा, "आप कितने अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आपने एक गलती कर दी, आपने मुझे फ्रैंक के बजाय 100 दे दिया है."
वैलेंटाइन जो है वो बहुत हैरान हुआ। वो इस बात पर हैरान नहीं था कि वो आदमी जो है वो कितना ईमानदार है, लेकिन वो इस बात पर हैरान था कि उसने फ्रैंक को 100 के दरमियान इतनी जल्दी जो है वो फ़र्क कैसे कर लिया। उसने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये फ्रैंक है। तो उसने फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं इसे अपनी उंगली फेर कर ही बता सकता हूँ। उस वक्त वैलेंटाइन के दिमाग में एक चमक हुई, मतलब उसको एक आइडिया, एक ख्याल सूझा। With this idea, Valentine took home a blind boy who Valentine allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of money in those days. As he continued his walk, he thought to himself, if the blind can distinguish, at least touch a piece of money, why should not distinguish a mark, a letter, or a figure? In short, they should be able to distinguish many signs so long as it is raised. उस टाइम उसने इस बिगर को फ़कीर जो है उसको वही फ्रैंक दे कर जाने दिए, लेकिन हालांकि वो उस टाइम एक फ्रैंक देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रकम थी उन दिनों में। वो उसने उसने चलना जारी रखा और अपने आप सोचता रहा कि अगर एक फ़कीर जो है, अंधा फ़कीर जो है, वो सिर्फ उसको सिक्के को टच करने से ही, उसके ऊपर हाथ फेरने से बता सकता है कि वो फ्रैंक है या क्या है, तो वो जो आदमी है अंधे, वो एक मार्क, निशान और लेटर और कोई भी फिगर के दरमियान फ़र्क क्यों नहीं कर सकते। इन शॉर्ट वो किसी भी साइन जो निशान होता है उसको क्यों नहीं उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं अगर उनको बनाया जाए। With this idea, Valentine took home a blind boy who he found begging at a church door. The blind boy became his first pupil and learned very quickly how to read from raised sign. With the help of the money donated by the public, Valentine, however, was able to start a school for the blind. अपने इस ख्याल के साथ उसने एक अंधे लड़के को, जो कि चर्च के दरवाजे के बाहर मांग रहा था, अपने घर लेके आया। वो उसका पहला स्टूडेंट था जिसने बहुत जल्दी ही उभरे हुए निशानात जो हैं उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने लोगों को दिए हुए मनी के साथ, पैसों के साथ बहुत ही जल्दी अंधों के लिए एक स्कूल खोल लिया। सम ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, ब्लाइंड मैन कॉल लुइस ब्रेली, आल्सो फ्रेंचमैन लाइक वैलेंटाइन हॉवे, परफेक्टेड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग स्पेशली फॉर अ ब्लाइंड, दिस राइटिंग कार ब्रेली। कुछ सालों बाद एक और अंधे आदमी, उसका नाम लुइस ब्रेली था, जब वो भी एक फ्रांसीसी आदमी था वैलेंटाइन हुए की तरह। उसने अंधों के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म की जो लैंग्वेज है राइटिंग की, लिखाई की, वो मुतारिफ करवाई। उस राइटिंग को ब्रेली बोलते हैं। ब्रेली इज़ अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज बाय द ब्लाइंड। ब्रेली बहुत ही ख़ास किस्म के अल्फ़ाबेट होते हैं जो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। द अल्फ़ाबेट इज़ मार्क्ड बाय द रेज डॉट on stiff paper which blind person can understand by the touch of their finger. The Louis Braille himself was blind and worked in a blind school in Paris. The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of Braille's death in 1852. Each letter in Braille's alphabet consists of one or more raised dots. In the diagram on the next page is a small dot represent unraised mark. The large dot represent the raised mark. ब्रेले ने जो है बहुत स्पेशल किस्म के अल्फ़ाबेट बनाए जो अंधे लोग इस्तेमाल करते थे। वो अल्फ़ाबेट जो है वो स्टिफ, बहुत ही जो मोटा वाला पेपर होता है, कागज़ होता है, उसके ऊपर उभरे हुए निशानात थे। ठीक है, जो अगर उंगली लगाएं तो फील होते हैं। जैसे कि आजकल के हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उनको देखने के लिए कि वो असली नकली उभरे हुए निशान होते हैं, डॉट होते हैं, वैसे ही ब्लाइंड्स जो राइटिंग इस्तेमाल करते हैं जिनको पढ़ने के लिए, वो भी एक उभरे हुए डॉट्स होते हैं। लुइस ब्रेली जो है वो भी ब्लाइंड था और एक पैरिस से एक अंधे ब्लाइंड के जो स्कूल है उसमें
काम करता था। उसने ये सिस्टम जो है वो बनाया 1834 में, लेकिन वो उस टाइम इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना उसकी डेथ के बाद हुआ, जो 1852 में हुई। ब्रेले में जो हर अल्फ़ाबेट है वो 2 या 3 डॉट्स पर मुश्तमिल होता है, नुक्तों पर मुश्तमिल होता है। और अगले पेज में आपको भी डायग्राम नज़र आएगी जिसमें जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो उभरे हुए निशानात के हैं, लेकिन जो बड़े डॉट्स हैं वो उभरे हुए निशानात को जाहिर कर रहे हैं। जैसे अगर 6 डॉट हैं जिसमें उभरे हुए सिर्फ 3 हैं तो वो एच है। ई के लिए 2 उभरे हुए डॉट्स होंगे, एल के लिए 3 उभरे हुए डॉट्स होंगे, इस तरह ओ के लिए भी 3 उभरे हुए डॉट्स होंगे। From the diagram above, you can see that the letter H consists of 3 raised dots and the letter L consists of the 3 dots too. However, the dots H are in a different pattern to those who will make up the letter L. And there are 6 possible positions for each dot. By placing the dot in various positions, 63 different patterns or shapes can be made. This means that there are patterns for each of the 26 letters of alphabet. In addition to 26 patterns, there are patterns for special words or words that are used in a lot of everyday language. Some of the common words such as it, if, for, the and many other frequently used words have one Braille symbol each. हर डॉट की जो है वो 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको मुख्तलिफ पोजीशंस में रख कर हम 63 डिफरेंट जो है 63 जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स जो है तरतीब जो है वो बना सकते हैं। इसका मतलब है कि वो उस इन पैटर्न्स के अंदर 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स होंगे और 26 अल्फ़ाबेट के अलावा जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम आम जिंदगी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सिंबल होगा। जैसे कि इफ़, इट, फॉर, द, मैनी है, इस तरह के जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पैटर्न यूज़ होता है, उनके लिए अल्फ़ाबेट के सारे पैटर्न्स यूज़ नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश टू मेक इट ईजियर टू रीड इन ब्रेली इट इज़ रिटन लाइक। मिसाल के तौर पर आपको बताया गया कि एंड जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको आसानी के लिए एक पैटर्न में इस्तेमाल करने के लिए ऐसे जो है वो जाहिर किया जाता है, जैसे नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है वो 5 डॉट्स जो है वो एंड को जाहिर कर रहे हैं। अदरवाइज ईच वर्ड वुड हैव बीन, अगर ए एंड डी को अलग अलग रखा जाए तो वो इस तरह दिखेंगे। बुक्स इन ब्रेली हैव टू बी क्वाइट थिक। ब्रेली की जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। दिस इज बिकॉज रिमार्क्स आर पॉइंट्ड आउट इन रोज अक्रॉस ईच पेपर, क्योंकि हर पेपर के ऊपर जो उभरे हुए निशानात हैं वो पंच के होते हैं। द रेज मार्क हैव टू बी बिग इनफ टू बी फेल्ड बाय द फिंगर टिप्स ऑफ द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ। मैनी बुक्स आर रिटन इन ब्रेली। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड ब्रेली एंड इन दिस वे they too can read and enjoy the works of the great authors. There are also machines that help the blind people to write in Braille. ब्रेली की जो बुक्स होती हैं उनके पेपर्स इतने मोटे होने चाहिए कि ताकि वो उनके जो निशानात वो बनाएं, निशान डॉट्स जो है वो उभरे हुए हों और उनको आसानी से उंगली से महसूस किया जा सके। ब्रेली की बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं जो अंधे लोगों को लिखना पढ़ना सिखाती हैं और उनको इस बात की भी आसानी हो जाती है कि वो बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स भी पढ़ सकें और उनको एंजॉय कर सकें। मशीन्स भी होती हैं अंधे लोगों को ब्रेली की राइटिंग, ब्रेले जो है वो लिखने के में जो है वो मदद करती हैं। So this is the end of the reading of the unit The Flash of Light.